Hello, hello, am I audible? Hello, am I audible? आपको कितनी बार पूछे तब आप आंसर देते हैं? एटलीस्ट इस चीज का तो एक्नॉलेजमेंट दे दीजिए। मंडे मैंने इन्फॉर्म किया, सॉरी सैटरडे मैंने इन्फॉर्म किया था पार्थ को, उसके बाद भी कोई नहीं आया लेक्चर में। सैटरडे 11 o'clock। और हर बार कोई आके देख के चला जाता है, कोई आया है, कोई आया है। अगर आप फिजिकली यहाँ पे आ रहे हैं दैट्स ओके, अदरवाइज वहां पे आपको घर पे बैठ के ही लेक्चर अटेंड करने थे, फिर भी किसी ने ज्वाइन नहीं किया। Okay, I think we have covered all the memories. RAM. What is the difference between RAM and ROM? ROM, it is a permanent. It is permanent data memory. Means we can store permanently, and that's why it is called as a non-volatile also. But it is only a read-only memory. And RAM, it is a random access memory. It performs the two operations, read and write both. But it is not permanent. It is a temporary data storage. If your device is switch off, then maybe your data maybe your RAM lose your data. Okay, so it is the difference between RAM and ROM. Okay, उसके बाद हमने कैम किया था, it is a content addressable memory. It is same as a RAM, but one important modification is there. It searching work as a high speed searching application. If I give the address, then it give me the data, and if I give the data, then it give me the address. Okay, so one feature add in the RAM, it is searching application, so it is called as a content addressable memory CAM. Next one, that is a charge coupled device. What is the principle behind this CCD? First of all, if you consider the camera, so light fall over the glass of the camera, and after that internal structure of CCD, it consists of silicon. पूरा स्ट्रक्चर किससे बना है? सिलिकॉन एटॉम से बना हुआ है, एंड इलेक्ट्रोड ओवर देयर इन दिस सिलिकॉन structure. And if you use the positive gate voltage to your electrode, then this positive gate voltage attract the photons. ओके उसके आसपास जितने भी नेगेटिव चार्ज है सबको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। फोटोन्स क्या आता है? जो भी लाइट है वो एक्चुअल में ग्लास पे आ रही है, इट इज कन्वर्टेड, लाइट कौन से फॉर्म में होती है? फोटोन्स के फॉर्म में, एंड दिस फोटोन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉन, एंड आफ्टर दैट दिस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड बाय particular electrode, and all electrode collected at the particular potential wall. Okay, we have to do for each and every pixel for that, and after that all electron converted into a voltage, or you can say intensity of particular pixel. So it is a principle behind a CCD. ओके आप जैसे इसको पॉजिटिव वोल्टेज देंगे, जो भी यहाँ पे आसपास में इलेक्ट्रॉन से जो फोटोन थ्रू इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हुए वो अट्रैक्ट होकर कहाँ पे जाएंगे? पोटेंशियल वॉल में, एंड आफ्टर दैट एट लास्ट जब आप शटर क्लोज कर दोगे अपने कैमरा का, तो जितने भी पर्टिकुलर पिक्सल में ये पर्टिकुलर पिक्सल वाइज जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्टोर्ड है वो सारे इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? इंटेंसिटी में, फॉर ईच एंड एवरी पिक्सल, एंड योर सीन विल बी रिकंस्ट्रक्टेड एज दैट. जैसे यहाँ पे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आए, इट इज फॉर पर्टिकुलर पिक्सल, सेम यहाँ पे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, सेम यहाँ पे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. आफ्टर दैट क्लोजिंग ऑफ योर कैमरा, दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू इंटेंसिटी, and it is reconstructed of your image. So it is considered as a CCD memory. Okay, after that, hello, my screen is visible or anything else? Hello. अभी से चला गया या कब से चला गया है? मैंने तो शेयर किया था एक बार. 2-3 मिनट हुई, 2-3 मिनट पहले.
अच्छा ओके, तो एटलीस्ट बताइए तो सही, मुझे तो वो आवाज आई तो पता चला कि मेरा शेयरिंग बंद हो चुका है। Okay, now it is visible. Yes. Okay, so we have got all the memories. It is like CCD, फिर कैम, रैम, वो सारे हमने कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट आर इट इज अ कॉम्बिनेशनल प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस। What is first of all programmable logic device? It is nothing but one type of your RAM or ROM, but we have to like programming this particular RAM. So it is considered as a programmable logic device as per your requirement, as per your like application. You can design your RAM. So it is called as a programmable logic device. Okay. So first आपको दिया what is like this PLD. Normally it is divided into three categories. अब थ्री कैटेगरी कौन कौन सी है ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है, अगर आपको याद है तो। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी प्रॉम, हमने प्रोग्रामिंग कैसे करना है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। सो इट इज अ फिक्स एंड एरे एंड प्रोग्रामेबल और है। ये फिक्स एंड एरे क्या है और प्रोग्रामेबल और एरे क्या है हमने आगे किया हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये रैम है, ये उसका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन था, उसके बाद ये इसका प्रोग्रामिंग था। ओके, एंड एज पर द प्रोग्रामिंग ये हमने डिजाइन किया था। सो इट इज अ प्रॉम, किससे बना है ये? यू कैन से इट इज अ डिकोडर। एंड क्या है ये? डिकोडर। और ये कौन से गेट से? और गेट। अब देखो और गेट से ना वो प्रोग्रामिंग वाला हमने प्रोग्रामिंग किया हुआ है। एंड यहाँ पे डिकोडर कंसिस्ट ऑफ नंबर्स ऑफ एंड गेट, वो क्या है? फिक्स है। सो योर प्रॉम इट इज नथिंग बट प्रॉम। Prom consists of fixed AND array and programmable OR array. So it is a one type of programmable logic device. As per our requirement, we can design this PROM. So it is work as a PLD, programmable logic device. Okay. So it is a PROM. Okay. Now next कौन सा? It is a programmable array logic. उसमें क्या difference है? So it consists of a programmable AND array and fixed OR array. अब total reverse हो चुका है। यहाँ पे फिक्स था वो यहाँ पे क्या हो चुका है? प्रोग्रामिंग वाला। ओके, और यहाँ पे जो प्रोग्रामेबल था वो यहाँ पे क्या हो गया? फिक्स हो गया। ओके, सो इट इज अ प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक। नाउ नेक्स्ट वन है प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ प्रोग्रामेबल एंड एरे एंड सेकंड इज प्रोग्रामेबल और एरे। मींस यहाँ पे दोनों प्रोग्रामिंग वाले हैं, एंड एज वेल एज और एरे। ओके, सो इट कंसिस्ट ऑफ फ्रॉम, PL and PLA. All are three programmable logic device. Okay, so your normal logic programmable logic device divided into three categories. Okay, from PL and PLA, तीनों के बेस आपको एग्जांपल पूछ सकते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट मैं स्टार्ट कर रही हूँ प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक। सो प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक किससे बना हुआ है? दिस वन, जिसमें एंड एरे है वो मेरा प्रोग्रामिंग वाला है, एंड और एरे कैसा है? फिक्स है, वो याद रखना। ठीक है, फर्स्ट हम प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक कर रहे हैं। सो प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक means it is a registered trademark of monolithic memories. It is a particular family of programmable logic device, and that is widely used and available from the numbers of manufacturers. The PL circuit consists of a set of AND gates whose input can be programmed. जैसे मैंने आपको बताया, अब AND array वो आपका फिक्स नहीं रहेगा, उसको हम क्या कर सकते हैं? प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। मतलब वो उसके इनपुट्स हैं तो उस इनपुट्स को हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इन दिस केस whose outputs are connected to OR gate and the input to OR gate are hardwired. ओके, जितने भी कनेक्शन है वो क्या होंगे? सारे हार्डवायर्ड होंगे, बट आउटपुट आपका फिक्स रहेगा। एंड इनपुट्स जो है जो एंड गेट का बना हुआ इट इज ए प्रोग्रामिंग। PL it is easier to program as only the AND gates are programmable. जो इनपुट के जो एंड गेट्स है मुझे सिर्फ एंड गेट्स को ही प्रोग्रामिंग करना है, और गेट का मुझे प्रोग्रामिंग नहीं करना है। दैट्स व्हाई दिस PL इट इज इजियर टू प्रोग्राम। व्हाई इट इज इजियर? बिकॉज प्रॉम में भी ऐसा ही था ना, हमने सिर्फ और गेट को लाइक प्रोग्रामिंग किया था। बट दिस सेंटेंस राइट इन कंपेरिजन ऑफ PL है। PLA में क्या है? दोनों प्रोग्रामिंग वाला है। ओके, सो ये सेंटेंस जो इजियर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इट इज इन कंपेरिजन विथ PLA, जहाँ पे दोनों प्रोग्रामेबल है। यहाँ पे सिर्फ कौन सा है? इनपुट का जो एंड गेट्स है वही सिर्फ क्या है? प्रोग्रामेबल से। ओके, तो अब कैसे करना है? ये आपको जनरल डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल्स लिए ABC,
वन नॉर्मल, वन कॉम्प्लीमेंट, अगेन बी का नॉर्मल, बी का कॉम्प्लीमेंट, अगेन सी का नॉर्मल एंड सी का कॉम्प्लीमेंट। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे एंड गेट में दी है, ठीक है। ये मैं जनरल स्ट्रक्चर बताया। यहाँ पे आपको फ्यूज सिंबल दिया हुआ, इट इज सिंपली वर्क एज अ स्विच की ऑन ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी सिग्नल मुझे यहाँ से चाहिए वो यहाँ पे कनेक्ट करना, जो नहीं चाहिए उसको आपको क्या कर देना है, मतलब ओपन कर देना। मतलब सारे कनेक्शन तो आपको दिखाने ही है, ईच एंड एवरी कनेक्शन, बट उस कनेक्शन को क्या कर देना, ओपन कर देना है अगर मुझे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब यहाँ पे देखो ये एंड गेट है वो प्रोग्रामेबल वाला है, और ये और गेट क्या होगा जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक है। उसका एक एग्जांपल यहाँ पे, ये मैंने आनंद कुमार का स्नैपशॉट लिया हुआ है। एक्चुअल में आपको ये फंक्शन डिजाइन करना था, कौन सा, एफ इज इक्वल टू ए बी डैश सी प्लस ए डैश बी सी। कौन सा है, ए बी डैश सी प्लस ए डैश बी सी। ये फंक्शन मुझे क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, ओके। तब मुझे वैसे सारे तो नहीं चाहिए, बट 3 वेरिएबल्स है तो सबकी नॉर्मल एंड कॉम्प्लीमेंट वैल्यू वो मुझे यहाँ पे तो कनेक्ट कर ही दे रही है, ओके। अगर आपको बोला है कि it consists of like you can say 3 AND gates, then you can write this, otherwise इसको write करने की requirement नहीं है इस particular gate को, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो क्या इम्प्लीमेंट करना था मुझे, 2 AND गेट चाहिए मुझे दोनों को परफॉर्म करने के लिए, ए डैश। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये फर्स्ट है ए, सॉरी ए, तो ए एज इट इज देना है, ए डैश को मुझे ओपन कर देना है बिकॉज मुझे ए डैश नहीं देना है। नाउ बी भी मुझे नहीं देना है बट बी डैश मुझे देना है तो उसको कनेक्ट करना है। फिर क्या सी, सी मुझे देना है पर सी डैश नहीं देना है। तो आफ्टर दैट यू कैन फाइंड ए बी डैश सी, क्योंकि ए कनेक्टेड है, फिर बी डैश कनेक्टेड है एंड सी कनेक्टेड है। सेम हियर ए डैश, तो ऑफ कोर्स ए को ओपन कर देना है बिकॉज वी आर गिविंग ए डैश। आफ्टर दैट वी हैव टू गिव द बी, बी डैश मतलब ये ओपन हो जाएगा, C तो डायरेक्टली देना है एंड C डैश में ये ओपन हो जाएगा। सो व्हाट इज योर आउटपुट ऑफ एंड गेट, A डैश B C, ओके। मुझे अगर ये बोला है कि डिजाइन योर दिस फंक्शन बाय यूजिंग 3 एंड गेट, देन यू कैन राइट दिस, अदरवाइज इसको राइट करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं क्योंकि 2 ही टर्म है मेरे पास। लेकिन अगर मुझे 3 बोला है तो उसको मुझे 0 करना पड़ेगा। तो 0 कैसे कनेक्ट किया हुआ, देखो सारे कनेक्ट कर दिए हैं। अच्छा ठीक है, चलो मैंने सारे कनेक्ट किए हैं तो ये 0 क्यों होगा, एनीवन? मैंने ए नॉर्मल, ए कॉम्प्लीमेंट सारे कनेक्ट कर दिए यहाँ पे। सो हाउ दिस वैल्यू इज वुड बी 0? चलिए कोई तो आंसर दीजिए, ये वैल्यू 0 कैसे होगी? नॉर्मली अगर मैंने सारे कनेक्ट किए हैं सो ए इंटू ए डैश, वो मल्टीप्लीकेशन में है। नाउ व्हाट इज ए इंटू ए डैश, का आंसर क्या आता है? व्हाट इज द आंसर ऑफ ए इंटू ए डैश, वो मुझे बताइए, अदरवाइज मैं सबकी एब्सेंट लगाऊंगी अभी। 0। तो अगर आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा। इट इज ए रूल, ए इंटू ए डैश 0, बी इंटू बी डैश भी 0 होता है, सी इंटू सी डैश भी 0 होता है। क्यों 0 होता है? अगर मैं ए की वैल्यू 1 लेती हूँ तो ए डैश क्या होगा, 0। अगर ए डैश की वैल्यू 1 लेती हूँ तो ए 0 होगा। तो अल्टीमेटली आंसर मेरा क्या आएगा, 0। सो यू कैन फाइंड इन दिस वे। तो आपको इस तरह से कोई भी फंक्शन डिजाइन करने को बोल सकते हैं कि डिजाइन दिस फंक्शन बाय यूजिंग PLA, सॉरी PAL, प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक। ओके, तो आपको इस तरह से डिजाइन करना है उसको। इसके एग्जांपल 7 मार्क्स में आते हैं 5th चैप्टर के। जैसे आपको ये दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे F1 ही किया हुआ है, आपको F2 भी इम्प्लीमेंट करके दिखाना है इन अवर नेक्स्ट लेक्चर, मीन्स टुमारो 11 o'clock। मुझे एक फंक्शन दिया हुआ है और ये भी दिया, दोनों को इम्प्लीमेंट करना। अब यहाँ पे देखो मैंने एक दूसरा वे निकाला है, यहाँ सारे इंडिविजुअल मैंने लिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ही लाइन में सबको कनेक्ट किया है। ये सारे कनेक्टेड है, नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट, नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट सारे कनेक्टेड है। सो इट इज इजियर कंपेयर टू
all this connection. So either you can take this or you can use like that. ओके जो भी चाहिए उसको क्रॉस मार्क कर देना. मुझे क्या चाहिए तो कैड एस, तो एड एस पे क्रॉस मार्क करना है. फिर क्या चाहिए बी, तो बी पे क्रॉस मार्क करना है. फिर क्या चाहिए सी, तो सी पे क्रॉस मार्क करना है. सेम फॉर दिस ए बी डेस सी. दो एंड गेट, ठीक है, और एक भी टर्म थी. सो अनदर थर्ड एंड गेट इज रिक्वायर्ड. सो इट इज ए एंड टू सी डेस. आफ्टर दैट वी कैन कनेक्ट इट बाय और गेट, सो वी कैन फाइंड दिस. ओके F2 का आपको इंप्लीमेंट करके मुझे दिखाना है, बट यूजिंग 3 NAND गेट, सॉरी 3 AND गेट. ओके आपको क्या करना है, इंप्लीमेंट दिस फंक्शन F2 बाय यूजिंग PL यूजिंग ओनली 3 AND गेट. मैं कल आपको पूछूंगी 3 AND गेट से ये बनाना है ये फंक्शन बाय यूजिंग PL. ओके दूसरा देखो, यहाँ पे आप इस तरह से भी कर सकते हैं. ये मैंने क्या किया, यहाँ पे सबको कंबाइन कर दिया. अनदर मेथड इज दैट, ये पूरा सेम रहेगा. यहाँ पे क्या करना है, आपको मार्क करना है कि ये टर्म यूज हो रही है, ये टर्म यूज हो रही है. अगर नहीं हो रही है तो उसको कनेक्ट ही नहीं करना है. तो तीनों टर्म वैसे यूज हो रही है ना, 1 2 3, देन वी कैन फाइंड F1. सो वी हैव टू क्रॉस मार्क ऑल दिस वैल्यू एंड गिवन टू OR गेट. इस तरह से भी आप बना सकते हैं. नंबर्स ऑफ वे है उसको बनाने के लिए, बट सबका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा. ओके now next one, it is a PL programming table. This table consists of 3 columns. First column lists the product terms numerically. Second column specify the required path between inputs and AND gates, and the third column specify the outputs of OR gate. वैसे नहीं आपको पता चलेगा, मैं आपको दिखाऊंगी तब आप इजीली फाइंड कर सकते हैं. फर्स्ट कॉलम क्या रिप्रेजेंट करेगी, जितने भी मेन टर्म्स है वो रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है. एंड सेकंड कॉलम क्या रिप्रेजेंट करेगी, रिक्वायर्ड पाथ बिटवीन इनपुट एंड एंड गेट्स. एंड थर्ड कॉलम क्या रिप्रेजेंट करेगी, आउटपुट ऑफ OR गेट्स. एक एग्जांपल लेके के आपको दिखाती हूँ किस तरह से हम इसका जो प्रोग्रामिंग टेबल है वो बना सकते हैं. आपको एक ये एग्जांपल दिया हुआ है. इट इज अ सेम एग्जांपल यू कैन फाइंड इन आनंद कुमार ऑल्सो. Implement the following Boolean function using PL with 4 inputs and 3 wide AND OR structure. Also write the PL programming table. Okay, also write the PL programming table. You can write in this way. Okay, ये आपको एक एग्जांपल दिया है. Okay, अब वापस KMap आएंगे, कैसे वो आपको बताती हूँ. देखो ये आपको F1 दिया हुआ है. चलो इसका मुझे आंसर फाइंड आउट करना, नॉट लाइक 2 12 13. मुझे KMap ड्रॉ करना है और इसका फंक्शन बनाना है. आपको ABCD 4 वेरिएबल KMap दिया हुआ है. यू हैव टू पुट 1 at 2 12 and 13 एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ F1. चलिए फाइंड कीजिए. इसके लिए मैंने आपको ये भी लिख दिया है 0 1 2 3 कहाँ पे लिखना है. आपको टर्म कौन सी दी है, मीन टर्म्स 2 12 and 13. ओके कौन सी मीन टर्म दी है, 2 12 13. वहां पे आपको 1 प्लस करना है, स्क्वायर बनाना है एंड F1 का आंसर फाइंड आउट करना है. चलिए इसका आंसर मुझे बताइए. F1 इज इक्वल टू क्या होगा, चलिए बहुत इजी है. 3 तो है. आपको एक स्क्वायर बनाना है और F का आंसर फाइंड कीजिए KMap थ्रू. यस ओके. F1 is equal to A B C dash plus A dash B dash C D dash. ओके नाउ नेक्स्ट वन कौन सा दिया हुआ है, नेक्स्ट वन आपको नंबर्स ऑफ दिए 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15. ओके मैं इसका यहाँ पे आपको एक बार दिखा देती हूँ. चलो यहाँ पे सारे जो मैंने आपको बोले मैं लिख ही देती हूँ. चलो यहाँ पे आपको 1 दिया हुआ. यू टू फाइंड द आंसर ऑफ F2 का आंसर बताइए.
A plus CD B dash. A plus CD B dash. नहीं B, सिर्फ B. A plus ये पूरा एक 8 का बनेगा, so we can write, if you compare this two term, so it is only A, it's fixed, so we can write A here, plus for next 10 we can combine this two, so रो में क्या आएगा CD, और यहाँ पे क्या कॉमन है, it is a B, so it is a BCD, so F2 it is your A plus BCD, okay. Now F3 कौन सा है, F3 आपको दिया हुआ है 0 2 3 4 5 6 7 8 10 11 15, ओके. चलो F3 के लिए फाइंड करो. फाइंड द आंसर ऑफ F3. CD plus A dash A dash plus A dash B plus A B dash B dash. यस इट इज ए F3. देखो ये फर्स्ट चार कॉर्नर के फर्स्ट बनेंगे, उसके बाद एक पूरा रो का और एक पूरा कॉलम का बनेगा, सो इट इज CD प्लस A dash B प्लस B dash D dash, ओके. नाउ लास्ट वन F4, it is a 1 2 8 12 13. चलो इसका आंसर बताओ फॉर F4 के लिए. चलिए F4 का आंसर बताइए. You can combine this two, और ये किसी के साथ भी कंबाइन नहीं होंगे, so you can find your answer in this way. ये 4 आ रहा है टोटल, ओके. अब ये जो है D, ओके. F1 की दो टर्म मिले हैं, उसके साथ उसका कंपैरिजन हो सकता है. F1 क्या है, F1 इज इक्वल टू AB C डैश प्लस A डैश B डैश C D डैश, तो वो दोनों टर्म यहाँ पे है, देखो ये वाली AB C डैश और ये, इसको हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, F1. सो F1 प्लस A C डैश D डैश प्लस A डैश B डैश C डैश D डैश, ओके. ये मैंने सिर्फ आपको कैमअप करवाया. एक्चुअल में आपका एग्जांपल्स क्या है, देखो. इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग बुलियन फंक्शन यूजिंग PL with 4 inputs and 3 wide AND OR structure. Also write the PL programming table.
क्या बोला है आपको 4 इनपुट से, तो वो तो है ही। पर क्या बोला है 3 एंड और का स्ट्रक्चर बनाना है आपको। कितने एंड और का एंड गेट कितने आना चाहिए 3, रिक्वायरमेंट है या नहीं है, एंड गेट तो 3 ही लेना है। ऑल्सो राइट द पीएल प्रोग्रामिंग टेबल फॉर दिस फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, ये जो नंबरिंग हमें दी थी मीन टर्म की, उसको हमने एज अ बुलियन फंक्शन में कन्वर्ट किया यूजिंग केमएफ। आफ्टर दैट वी कैन अप्लाई द मीन्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर बाय यूजिंग पीएल एंड वी कैन अप्लाई द प्रोग्रामिंग टेबल। ये देखो ये प्रोग्रामिंग टेबल बनाया हुआ है। कैसे ये प्रोग्रामिंग टेबल किस तरह से है, देखो प्रोग्रामिंग टेबल में फर्स्ट है ना वो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्चुअल में अगर आप काउंट करें तो टोटल कितनी टर्म्स है आपके पास, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। कितनी टर्म्स है 10। बट मैंने तो यहाँ पे 12 लिखा है। क्यों 12 लिखा हुआ है मैंने, क्योंकि मुझे बोला हुआ है एंड गेट मुझे कितने चाहिए 3। सो ईच एंड एवरी फंक्शन के लिए मुझे 3 टर्म्स लिखनी पड़ेगी, अगर रिक्वायरमेंट है या नहीं है फिर भी मुझे 3 टर्म्स कंसिडर करनी है। तो फर्स्ट फंक्शन मेरा f1 है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 3 टर्म्स लिखी है, 1 2 3 नंबर दिया है सिंपली। ओके कौन कौन सी प्रोडक्ट टर्म है, तो ए बी सी डी है, तो यह सी तो है मतलब सी की वैल्यू क्या है सी डैश मतलब 0 एंड डी है, डी तो है ही नहीं। ओके और f1 अभी हमने कुछ भी फाइंड नहीं किया है, सो वी कैन राइट 1। ओके क्योंकि f1 है ना वो सिर्फ यहीं पे अप्लाई होगा, दैट्स व्हाई। नाउ नेक्स्ट क्या है, ये कौन सी टर्म a डैश b डैश, सो 0 0 c मीन्स 1 एंड d डैश मीन्स अगेन 0। जहाँ पे डैश आएगा वहाँ पे 0 लिखना, जहाँ पे नॉर्मल वैल्यू है वहाँ पे 1 प्लस करना है ना। f1 है नहीं है, टर्म में f1 कहीं पे नहीं है क्योंकि f1 खुद है। ओके थर्ड टर्म मुझे लिखनी है कंपलसरी, वैसे यहाँ पे है ही नहीं थर्ड टर्म, सो आई जस्ट राइट डैश 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 डैश। ओके तो एक्चुअल में प्रोग्रामिंग टेबल क्या है, यहाँ प्रोडक्ट टर्म आएगी, यहाँ पे एक्चुअल में आपको उसके कनेक्शन लिखने हैं कि 1 है या 0, और यहाँ पे आउटपुट आएगा f1 का। ठीक है नाउ नेक्स्ट क्या है, f2 इज इक्वल टू a प्लस बी सी डी, 2 ही टर्म्स है बट 3 लिखनी है मुझे, 4 5 6 मुझे क्या बोला है 3 एंड और स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे सिर्फ a ही है तो सिर्फ a लिखना है, मतलब a में 1 करना है, बाकी सारे डैश रहेंगे। फिर bcd तो bcd में 1 लिखना है, बाकी सब क्या रहेंगे डैश। सेम फॉर ये टर्म ही नहीं दी है, सो आई जस्ट राइट डैश। ओके सेम फॉर f3, कितनी टर्म्स है 3, चलो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज इसमें 3 टर्म्स ही है। तो cd दिया है फर्स्ट ऑफ ऑल, cd आई थिंक लास्ट में दिया होगा, ये एक मिनट cd एडएसबी ये टर्म ली है फर्स्ट, ये एडएसबी सो इट इज 0 1 डैश डैश। उसके बाद कौन सी टर्म ली है cd, तो ये cd वाले टर्म्स आप अपने हिसाब से इस टर्म को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है यहाँ से एंड बी डैश डी डैश तो क्या आएगा 0 0 बी एंड डी की जगह पे बाकी सब जगह पे डैश आएगा। सेम फॉर 10 11 12। ओके 10 11 12 में देखो f1, तो f1 अब यहाँ पे 1 आया है, बाकी सब क्या है डैश। सेम यहाँ पे a एज इट इज रखना है, c एंड d में क्या लिखना है 0 एंड 0 बिकॉज c डैश एंड d डैश। सेम यहाँ पे a डैश b डैश c डैश, तो ऑल आर 0 एक्सेप्ट d बिकॉज d की वैल्यू क्या है 1। ये आपका क्या हुआ प्रोग्रामिंग टेबल, बहुत इजी है। पर प्रोग्राम इसको इसलिए बोलते हैं कि ये 1 0 के हिसाब से आप अपने वायर के कनेक्शन करेंगे, दैट्स वाई। ये आपके इनपुट से प्रोडक्ट टर्म या आउटपुट से, उसके लिए ये वायर कनेक्शन से 1 मतलब कनेक्टेड है, 0 मीन्स ओपन है, दैट्स वाई। ओके सो इट इज अ प्रोग्रामिंग टेबल। अब ये जो मैंने प्रोग्रामिंग टेबल बनाया हुआ, ठीक है, उसके बाद मुझे क्या बनाना है, सिंपली स्ट्रक्चर बनाना है। वैसे अगर आप ये नहीं बनाएंगे फिर भी हम पीएल थ्रू डिजाइन तो कर ही सकते हैं, बट आपको बोला था दैट्स वाई हमें ये बनाना है, अदरवाइज ये टर्म्स से हम कर सकते हैं डायरेक्टली इम्प्लीमेंट और डिजाइन। अब यहाँ पे देखो 4 फंक्शंस है मेरे पास, तो f1 f2 f3 4 मैंने यहाँ पे लिखे एंड इट इज अ पीएल, मतलब एंड गेट सारे प्रोग्रामिंग वाले हैं और एरे क्या है फिक्स है, तो ये सारे क्या रहेंगे फिक्स रहेंगे। ठीक है ओके अब क्या है मेन इंपॉर्टेंट, तो अगर फर्स्ट f1 था, f1 में 3 टर्म्स है देखो, क्योंकि मुझे 3 टर्म्स देनी ही है कंपलसरी, तो ये 3 टर्म्स आपको f1 में दे देनी है। अब ये 3 टर्म्स क्या थी, तो फर्स्ट क्या था a b c डैश, तो वहां पे डैश आएगा देखो a b c डैश। नेक्स्ट टर्म कौन सी है a डैश b डैश c d डैश, सो a डैश b डैश c एंड d डैश, ये हो गया। अब थर्ड टर्म तो है ही नहीं, तो थर्ड मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है एंड गेट, बट वहां पे क्या लिख देना है क्रॉस, और यहाँ पे क्रॉस करके यहाँ पे दे देना, मतलब ये यूज नहीं हो रहा है बट हम उसको कनेक्शन दे रहे हैं।
सेम फॉर F2 के लिए बाकी के 3 एंड गेट्स है, तो इसमें क्या आएगा, तो एक ए ही था तो ए यहाँ पे दे दिया, दूसरा क्या था तो कि बी सी एंड डी, तो यहाँ पे मैंने दिया, और थर्ड टर्म तो थी ही नहीं तो आई जस्ट राइट क्रॉस, एंड F2 में ये तीनों क्रॉस करके मुझे F2 में दे देना है। ठीक है, F2 क्या था, ए प्लस बी सी डी, अब क्या है सी डी प्लस एड एस बी प्लस बी डेस डी डेस, तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एड एस बी डेस, उसके बाद सी डी लिया और उसके बाद बी डैश एंड डी डैश, तीनों का एंड गेट, और तीनों को यहाँ पे क्रॉस करके तीनों का कनेक्शन कहाँ पे देना है, F3। सेम फॉर F4 में भी 3 टर्म्स, एक तो F1 ले लेना है डायरेक्ट, ठीक है, तो F1 है क्या हमें डायरेक्टली ले लिया मैंने, दूसरी टर्म कौन सी है तो कि ए, फिर क्या है ए, फिर सी डैश एंड डी डैश, देखो ए सी डैश डी डैश, ठीक है, और ये लास्ट टर्म तीनों एंड गेट में दे दिए और तीनों को क्रॉस करके कहाँ पे देना है, F4 में देना है। ठीक है, और ये देखो F1 मैंने कहाँ से लिया हुआ, ये जो आ रहा है ना F1, ये F1 को मैंने यहाँ पे दिया और उसका कॉम्प्लीमेंट लिया क्योंकि मुझे यहाँ पे F1 देना है, दैट्स वाई। ओके, सो इट इज़ वेरी इजी बट दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट बहुत इजी है। 7 मार्क्स में आपको एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। क्या क्या करना है, सिंपली आपको अगर डायरेक्टली मेन टर्म्स दी है तो आपको क्या करना है, मेन टर्म्स का केमएफ ड्रॉ करना है, उसके बाद इसका प्रोग्रामिंग टेबल आपको बोला है तो ड्रॉ करना है, नहीं बोला है तो आप डायरेक्टली भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसकी कोई वैसे इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए एक्चुअल में रिक्वायरमेंट नहीं है, बट कंप्यूटर है ना वो प्रोग्रामिंग टेबल पे वर्क करता है कि उसको 1 यहाँ पे एंड 0 यहाँ पे, तो ऑफकोर्स ए बी देगा और यहाँ पे क्या देगा, डैश देगा। ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टेबल पे वर्क करता है, दैट्स वाई अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम इसके थ्रू भी ये इसको डिजाइन कर सकते हैं। ओके, किसी को डाउट इस एग्जाम्पल में, normally ask in GTO for 7 marks PL example, any doubt in this? हेलो, एनी डाउट इन दिस तो पूछिए। हेलो, एटलीस्ट गिव मी एक्नॉलेजमेंट, नहीं समझ जा रहा है या समझ आ रहा है प्लीज एटलीस्ट बताइए तो सही, कि इसमें मुझे नंबर बोल के सबको जगाना पड़ेगा कि आप आंसर दीजिए, बोलिए। एनी डाउट इन दिस? ओके, जस्ट राइट दिस एग्जांपल। कल मॉर्निंग मैंने आपको जो F2 का बोला, आगे जो गया वो, और ये दोनों मैं आपको पूछूंगी। ठीक है, तो आपको ये लिखना है एग्जांपल तो लिख लीजिए, या फिर इसका स्नैपशॉट लेना है, एग्जांपल का स्नैपशॉट ले लीजिए आपकी स्क्रीन का, ये मैं आपको कल पूछूंगी। और किसी का भी नंबर बोलूंगी उसको अपनी स्क्रीन शेयर करनी है, अदरवाइज मैं एब्सेंट लगा दूंगी। ठीक है, जैसे स्टार्ट होगा मैं अपना नंबर बोलूंगी, इसमें से कोई भी उसको अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखानी है, इधर मोबाइल की या फिर लैपटॉप की, इट्स ओके। अगर आपने उसमें किया हुआ है नोट अपनी नोट्स में तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, आप उसका स्नैपशॉट लेके। तो इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, ये आपको कल मुझे दिखाना है। एंड दूसरा ये वाला, इसका भी ले लीजिए, इसमें मैंने F1 डिजाइन किया हुआ है, आपको F2 करना है। ये देखो मैंने एक डिजाइन किया, उसका स्नैपशॉट ले लीजिए, आपको इस तरह से करना है बाय यूजिंग 3 एंड गेट। डन। ओके, आप इस तरह से भी उसको डिजाइन कर सकते हैं, बट ये जनरल मेथड है बाय यूजिंग पीएल। तो ये 2 एग्जांपल में पीएल को आपको पीएल का कल मैं आपको पूछूंगी। ठीक है, F2 ये वाला और एक ये वाला जो मैंने आपको दिया, उसके बाद ही मैं आगे जाऊंगी पीएल के। अभी मैं अटेंडेंस का बोलूंगी तब तो आप सबको सुनाई देगा और सब आंसर देंगे।